ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਮਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ PS ਟੈਟ, STET ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ PS ਟੈਟ, STET ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੀ SS ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਸ 'ਤੇ 7th ਨੰਬਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। 57 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਓ, ਆਪਸ਼ਨ 3 ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਆਪਸ਼ਨ 4 ਹੈ ਨਾਦਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ए ऑप्शन। सो शेख दिन मुहम्मद जो है जो कि इंडिया के फस्ट राइटर कहते हैं कि इंग्लिश राइटर, ठीक है जी। सो शेख दिन मुहम्मद बंगाली राइटर सीगे। सो बंगाल दे विच ना जन्म होया सी 1749 और 1851 दे विच इन्हां दी जिहड़ी डेथ हो गई सीगी। Was an Indian travelers, surgeons and entrepreneurs who was one of the most notable early non-European immigrants to the western world। सो ये सब तो प्रसिद्ध ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇਸ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵਾਜ ਓਰੀਜਨਲੀ ਰਿਟਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ B ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। नेक्स्ट है 53, हु वाज द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन ए लिटरेरी अवार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ऑप्शन ए है धन गोपाल मुखर्जी, ऑप्शन बी है नारद सी चौधरी, ऑप्शन सी है राजा राव, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। सो फर्स्ट इंडियन ऑथर विन ए लिटरेरी अवार्ड ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਮੁਖਰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਅਵਾਰਡ। ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਮੁਖਰਜੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਔਨ 6 ਜੁਲਾਈ 1890 in a village near Kolkata on the edge of the jungle called the Kajangals। So इस स्थान विखे इन्हां दा जिहड़ा जन्म होया सी। His father whom he describes as an Olympian who was lost in the world was a lawyer who gave up his practice due to ill health and studied music instead, while also officiating as priest at the village temple। सो इन्हों के द्वारा जो बुक्स लिखिया गई ने सो आ गया है सांध्या और सॉन्ग ऑफ ट्विंगलिंग सैन फ्रांसिस्को पॉल एल्डर्स 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ, रजनी और सॉन्ग्स ऑफ द नाइट्स एल्डर 1922 और लैला मजनू ईड 1922 एंड कारी द एलिफेंट न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ और ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਆਊਟਕਾਸਟ ਡਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਾਰੀ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲੈਟ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਫੇਸ ਡਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਡਟਨ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੇਨਿਕ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡਸ ਡਟਨ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦ ਹੰਟਰ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਏ ਸਨ ਆਫ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਆਨਸਰ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਹੇਅਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਬਿਊਸ਼ਨਸ ਪੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਦ ਹਿੰਦੂ ਬਾਈਬਲ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਫੈਬਲਸ ਫॉर ਲਿਟਲ ਚਿਲਡਰਨ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਮੀ 1929। डिसल्यूजन्स इंडिया 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਮਾ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦ ਸੌਂਗ ਆਫ ਗॉड ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ 1931। ਦ ਮਾਸਟਰ ਮੌਂਕੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੈਂਸ ਫੇਸ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਟਾਈਗਰ 1936। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 54 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਆਫ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਕਮਲਾ ਦਾਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜਨਤਾ महापात्रा, ऑप्शन सी है ए के रामानुजन और ऑप्शन डी है नीरज सी चौधरी। सो ऑटोबायोग्राफी एज ए नोन एज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन अननोन इंडियन। सो ये किसकी जी रचना है इन्होंने विचों। सो राइट है जी आंसर दा डी आंसर। सो नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है जो कि बेस्ट वर्क मन्या जाता है इन्हों का। नीरज चौधरी CBE। सो 23 नवंबर 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1 ਅਗਸਤ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਚੌਧਰੀ authors numbers work in the English and Bengali literatures। सो बुक्स जो है द ऑटोबायोग्राफी ऑन ए इन नॉन इंडियन 1951 में प्रकाशित हुई है, पब्लिश हुई है। ए पैसेज ऑफ इंग्लिश सॉरी ए पैसेज ऑफ इंग्लैंड 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ कॉन्टिनेंट ऑफ सर्क्स 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੂ ਲਿਵ ਔਰ ਨੋਟ ਟੂ ਲਿਵ 1971 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਾਲਰ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਹੋਨਰਬਲਸ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰਸ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਇਨ ਵਿੰਟੀਪੈਕਸ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਲਾਈਵਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਫ ਲੀਬਾਈ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਅਨਾਰਚ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਹਾਰਸਮੈਨਸ ਆਫ ਏ ਨਿਊ ਐਪਲੋਕਸਿਸ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ ਈਸਟ ਇਜ਼ East and West is West collection of the pre-published essays and from the archives of Conterian's collection of the pre-published essays why I Mourn from England collection of pre-published essays। सो ये इन्होंने कुछ और प्रमुख रचनावां सी और इन्होंने जो हॉनर्स मिले ने जो अवार्ड मिले ने। सो डफ कॉपर्स मेमोरियल्स अवार्ड 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਨ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੀਲਿਟ ਫਰੋਮ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰਸ in 1997 by the government of the West Bengal and discotums in the 1997 by the Visakha ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 55 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਦ ਇੰਟਰਾਈ ਮਹਾਭਾਰਤਾ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ए है RK नारायणा, ऑप्शन बी है P पाल और ऑप्शन C है शासी तौर और ऑप्शन D है बिकम सेठ। सो इंग्लिश ने भी सब तो पहला कह सकते हैं महाभारत जी किसने ट्रांसलेट की हैगी किस द्वारा। राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। सो P पाल ने सब तो पहला जी कह सकते हैं कि महाभारत जो हैगी ट्रांसलेट की हुई है। सो पुरुषोत्तम लाल फुल नाम है इसका। सो 28 अगस्त 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਨਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਏ P ਲਾਲ was a Indian poet, essayist, translators, professors and publishers ਸੀਗਾ। और he was a founder of publishing from writer workshop in the Kolkata and established in 1958. His profession best known is the translator and the translators
of the epic poem Mahabharata in the English. His translator, which was published in the edition of the over 300 factuals since the early 1970 centuries, was republished in the collected editions of 18 large volumes. सो 18 ਲਾਰਜ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, ग्राम ग्रीस वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ। सो ऑप्शन एक है जी आर के नारायणा, ऑप्शन बी है तरुण दत्त, ऑप्शन सी है भारती मुखर्जी और ऑप्शन डी है हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय। सो राइट आंसर इसका ये ऑप्शन सो आर के नारायणा का फ्रेंड सीगा जी ग्राम ग्रीस, जो कि सब तो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के विच इन्हां नूं गिणिया जांदा है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, नारायणा क्रिस्टेड इन द फ्रिक्शंस टाउन ए मालगुडी विच इज सिमिलर टू। सो किस दे नाल मैच करता है मालगुडी टाउन, जोफरी चर्चेस ऑफ कंट्रवरीज और ऑप्शन बी है पोप इज लंडन, ऑप्शन सी है थॉमस हार्डी इज फैक्स और ऑप्शन डी है टी एस एलारी ऑफ एलारिस वेस्ट लैंड्स। सो राइट आंसर है सी ऑप्शन थॉमस हार्डी इस वैक्स जो हैगा ये मिलता है मालगुडी, जो कि आर के नारायणा के द्वारा एक नावल लिखा, उस जो मालगुडी शहर का नज़र आता है ना, सो उसकी जी कंपेयर किया गया सिमिलर जो लिखा गया थॉमस हार्डी के वैक्स के द्वारा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, रशीज इज़ ए फेमस वर्क मिडनाइट इज चिल्ड्रन गॉट बुकर प्राइज इन। सो ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1983 और ऑप्शन डी है 1984। सो दिस इज फेमस वर्क इन मिडनाइट चिल्ड्रन गोट बुकर प्राइज, इसके विच किस नूं कह सकते ना फेमस होए ने किस समय। सो राइट आंसर है ये ऑप्शन सो 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फेमस कह सकते हैं ना मिडनाइट चिल्ड्रन गोट वर्कर प्राइज के लिए प्राइज दिता गया सी। नेक्स्ट है 59, ए सुटेबल बॉय 1994 इज रिटन बाय। सो ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है अरुण कालथाकर और ऑप्शन डी है सी है दिलीप चैटर्जी और ऑप्शन 4 है केसरी कातरिक। ए सुटेबल बॉय जोड़ा वो किस द्वारा लिखी गई, जो कि 1994 के प्रकाशित हुई है। सो ऑप्शन है विक्रम सेठ के लिए जी ये प्रकाशित हुई हैगी, यानी कि विक्रम सेठ जो है उसने इसको प्रकाशित किया है, लिखी हुई रचना सॉरी। सो ऑप्शन नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, शासी थॉरन इज इन हिज द ग्रेट इंडियन नॉवल 1989 फॉलो स्टोरी टेलिंग मोड एज इन। सो ऑप्शन ए है गीता, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है रामायण और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। सो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। सो महाभारत की जो स्टोरी है जो कि द ग्रेट इंडियन नॉवल है उसनों इसके विच प्रकाशित किया गया है। सो यह स्टोरी टेलिंग है महाभारत की। सो द ग्रेट इंडियन नॉवल्स शासी थॉरर के द्वारा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, टू विच कम्युनिटी निज़ाम एजिकल्स बिलोंग्स। सो ऑप्शन ए है ज्वेश, ऑप्शन बी है पर्शियंस और ऑप्शन सी है जैन और ऑप्शन डी है मुस्लिम। सो निज़ाम एजिकल्स किस कम्युनिटी तो जोड़ा बिलोंग करता सी। सो राइट आंसर इसका ये ऑप्शन सो जिविस जो है कम्युनिटी तो बिलोंग करता सी। नेक्स्ट है 62, विच नॉवल वाज प्रीवियसली टाइटल एज द ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ। सो ऑप्शन ए है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन सी है द इंग्लिश टीचर और ऑप्शन डी है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। सो सेम टाइटल के दोबारा कह सकते हैं दोबारा तो जोड़ा बनाया गया इन्हों किस नावल में। सो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन। सो द इंग्लिश टीचर है जो कि ग्रेटफुल टू लाइफ डेथ के प्रीवियस टाइटल के दोबारा इसनों एडिट किया गया। नेक्स्ट है 63 नंबर, फॉर विच नावल नारायणा गोट रिकॉग्निशंस इन द वेस्ट। ऑप्शन ए है द इंग्लिश टीचर, ऑप्शन बी है वेटिंग फॉर द महात्मा और ऑप्शन सी है द वेंडोर्स ऑफ स्पीड्स और ऑप्शन डी है द पेंटर ऑफ साइंस। सो ऑप्शन ए इस द राइट आंसर है द इंग्लिश टीचर जो है किस लिए है नारायणा गोट रिकॉग्निशंस इन द वेस्ट। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ नारायणा वाज डब्ड इनटू ए मूवी। सो ऑप्शन ए है वेटिंग फॉर द महात्मा, ऑप्शन बी है द गाइड, ऑप्शन सी है ए टाइगर ऑफ मालगुडी और ऑप्शन डी है ग्रैंड मदर इज टॉल्स। सो राइट आंसर है बी ऑप्शन। सो विच नॉवल ऑफ नारायणा वाज डब्ड इनटू ए मूवी, द गाइड नावल है।
नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर के नारायणा। सो ऑप्शन ए है माई डेटलेस डायरी, ऑप्शन बी है माई डेज, ऑप्शन सी है मालगुडी डेज और ऑप्शन डी है अंडर द बनायस ट्रीज, banana trees. So right answer is the बी आंसर। सो मई डेज जो इस द राइट आंसर है। सो बाय मिस्टेक जो आंसर थे है राइट नहीं है। सो राइट आंसर बी ऑप्शन है, मई डेज जो है कि जो कि ऑटोग्राफी हैगी आर के नारायणा जी। नेक्स्ट है 66 नंबर, विच बुक कंटेन आर के नारायणा एज ए यूएसए ट्रेवल मेमोरीज। तो ऑप्शन ए है माई डेटलेस डायरी, ऑप्शन बी है ए हॉर्स एंड टू गोड्स और ऑप्शन सी है लॉली रोड्स और ऑप्शन डी है इन एस्ट्रोलॉजर्स डेज एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज। राइट आंसर है ए ऑप्शन। सो माई डेट लिस्ट डायरी जो हैगी वो आर के नारायणा दी यूएसए ट्रैवल मैमोरीज ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अनीता देसाई। सो ऑप्शन ए है कैरी द पीकॉक और ऑप्शन बी है बाय बाय ब्लैक बर्ड, ऑप्शन सी है ए विलेज बाय द सी और ऑप्शन डी है रेलुकट गुरु। सो राइट आंसर है जी डी ऑप्शन। सो रेलुकट कंटेंट गुरु जो हैगी ਉਹ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਈ ਦਾ ਪੀਕੋਕ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਲੈਕਬਰਡ, ਇਹ ਵੈਲੇਜ ਬਾਏ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। नेक्स्ट है 68 नंबर, निकेटर इन द सीप्स इज रिटन बाय। सो ऑप्शन ए है अनीता देसाई, ऑप्शन बी है कमला मार्कंडियाज, ऑप्शन सी है राजा राव और ऑप्शन डी है स्टीफन अल्टर्स। सो राइट आंसर है जी बी ऑप्शन। सो कमला मार्कंडियाज की रचना की हुई है जी नेक्टर इन ए सीप्स। नेक्स्ट है नेक्टर इन ए सीव इज रिटन बाय। सो ऑप्शन ए है अनीता देसाई, ऑप्शन बी है कमला मार्कंडिया, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है राजा राव और ऑप्शन डी है स्टीफन अल्टर। सो राइट आंसर है जिसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 69, ग्रेट इंडियन हंटिंग स्टोरीज इज एडिटेड बाय। सो ऑप्शन ए है स्टीफन अल्टर, ऑप्शन बी है साशी थोरर और ऑप्शन डी सी है खुशवंत सिंह और ऑप्शन डी है मुल्क राज आनंद। ग्रेट इंडियन हंटिंग स्टोरीज जो है किस दे द्वारा एडिट की गई। सो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन। सो स्टीफन अल्टर के द्वारा जिहड़े इसनूं एडिट किया गया है। नैक्सट है 70 नंबर क्वेश्चन, खुशवंत सिंह इज हिस्ट्री ऑफ सिक्स कंटेन्स। ऑप्शन क्या है 5 वॉल्यूम्स, ऑप्शन बी है 4 वॉल्यूम्स, ऑप्शन सी है 3 वॉल्यूम्स और ऑप्शन डी है 2 वॉल्यूम्स। सो राइट आंसर है जी डी ऑप्शन। सो खुशवंत सिंह की जो हिस्ट्री ऑफ सिक्स बुक है उसनूं जिहड़ा कि प्रकाशित किया है कंटेन किया गया वो 2 वॉल्यूम्स के जिहड़ा किया गया है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। सो अज के सैशन में इन्ने ही क्वेश्चन। सो आस करदा कि वीडियो सब लिए हैल्पफुल रहेगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिले होगा। सो जेकर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट सैशन के अपने सुझाव देने तुसीं ना भुलिया करो। थैंक यू सो मच। सो जिहड़े विद्यार्थी पहली बार आए सो चैनल को सबसक्राइब करना ना भुलियो। थैंक यू सो मच।